बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम CSS जवानों को खुशामदीद। In this lecture, we'll talk about how to spend your 3 hours smartly in the written exam. And this is not just for the CSS written exam, in fact, it is for all the competitive exams, whether it is a PCS exam, PMS exam, or any other written exam. In most of the written exams, we are given the time of 3 hours. In CSS exams in particular, there is 30 minutes for objective, and the remaining 2 hours and 30 minutes for the subjective portion. Now this is the official time that is allocated for the subjective and the objective portion. The examiner will give you the paper, the objective paper first, and you will have 30 minutes, and after 30 minutes the examiner will take back the objective paper. Usually it's considered that there are 30 minutes for objective, and for the remaining subjective you are left with 37.5 minutes per question. This is the obvious approach because we have 30 minutes, and since we have to solve 4 questions, so per question we get the time of 37.5 minutes. This is the obvious approach if we look into it. But this is not how it actually happens. When you are actually sitting in the CSS examination, the situation is entirely different. I will take you to the CSS examination center, and you will feel exactly how you will be feeling the gravity when you will be sitting there. This is the official approach. Let me remind you again. 30 minutes for objective and the remaining 2 hours and 30 minutes for subjective. But this is not how it actually works. Let's discuss the realistic approach, how we will be managing our 3 hours when we will be sitting in the examination hall. Okay, so when you are sitting there, you will be given the sheets first, the answer sheets. There will be ample time. You can either in 2025 हमें ये कहा गया था कि आपने 50 मिनट पहले पहुंचना है पेपर स्टार्ट होने से पहले, यानी अगर आप 9 बजे गए हैं पेपर देने तो आपने 50 मिनट पहले पहुंचना है। अब जब आप 50 मिनट पहले पहुंचेंगे तो एंट्री अपने हॉल में एंटर होते वक्त ही आपको आंसर शीट पकड़ा दी जाती है। अब आपके पास बहुत सा टाइम होता है उस आंसर शीट को प्रेजेंटेबल बनाने के लिए। So the first thing you do when you get the answer sheet is, you have to apply the margin lines. I hope it's readable. Yes. The first thing you have to do is you have to make sure that you have made your paper presentable. आपने अच्छे से margin lines लगाने जिन्हें हाशिए कहा जाता है, ब्लू मार्कर से लगाने हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि वो डबल मार्जिन लाइंस लगा देते हैं। डोंट, दैट लुक्स वेरी ओवर। एक सिंगल मार्जिन लाइन एक बड़े स्केल से खूबसूरत सी लगा दें तो दैट विल मेक योर पेपर लुक वेरी गुड। द सेकेंड थिंग यू हैव टू मेक श्योर इज ऑलवेज स्टार्ट योर पेपर फ्रॉम द लेफ्ट साइड। अब ये तो बड़ा ऑब्वियस सी बात है कि पेपर लेफ्ट साइड से शुरू होता है क्योंकि इंग्लिश जो होती है हमारी लेफ्ट साइड से शुरू होती है। बट यहाँ पे एक छोटे सा ट्रिक है जो FPSC जो है हमें एक रूल्स के मुताबिक हमें फॉलो करना पड़ता है कि कुछ पेपर्स, फॉर एग्जांपल इस्लामियात, लोग उर्दू में अटैम्प्ट करते हैं और उर्दू जो है वो राइट साइड से होती है। फॉर एग्जांपल ये पेपर है आपका, ये बुक है, तो उर्दू ऐसे हम पढ़ते हैं। लेकिन इस्लामियात का पेपर जब आप सॉल्व करेंगे तो वो भी आपने लेफ्ट साइड से ही करना है। लिखेंगे आप अपनी राइट साइड से उर्दू आप ऐसे ही इस तरफ से लिखेंगे, बट यू विल स्टार्ट योर पेपर फ्रॉम दी
लेफ्ट साइड, यानी कि ये अगर शीट है, लेट मी इरेज इट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट बिकॉज जो फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट दे रहे होते हैं उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम होती है। अगर ये आपकी आंसर शीट है, टेक्निकली तो उर्दू यूं शुरू होती है और फिर यूं शुरू होती है, बट अगर आप इस्लामियात या पंजाबी का पेपर शुरू कर रहे हैं तो आप यहां से शुरू करेंगे एंड देन यू विल मूव टू दिस, यानी कि हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट कर रहे हैं और इसी तरह ही जब अगली शीट पलटेंगे तो फिर हम यहां से शुरू करेंगे और फिर हम यहां से इस तरह फॉलो करेंगे पैटर्न को। हम फॉलो पैटर्न वही करेंगे जिस तरह हम इंग्लिश का पेपर सॉल्व करते हैं, बट लिखेंगे हम उर्दू की साइड से ही। दिस इज वन ट्रिकी थिंग टू नोट व्हेन यू आर सॉल्विंग योर पेपर। अच्छा, ये तो वो वक्त आ गया कि अभी आपका पेपर स्टार्ट नहीं हुआ, बिफोर द स्टार्ट ऑफ पेपर। एक्चुअल टाइम हमारे जो 3 आवर्स होते हैं वो तो उस वक्त स्टार्ट होते हैं जब आपको पेपर एक्चुअली ऑब्जेक्टिव पेपर हैंड आउट किया जाता है। उसके बाद जो 3 आवर्स आपने स्पेंड करने होते हैं उसकी हम रियलिस्टिक अप्रोच को अब डिस्कस करते हैं। We use this so that it becomes more clear. डस्टर से एक्चुअली पीछे निशान रह जाते हैं तो इस वजह से उस पर जब लिखें तो फिर थोड़ी सी इनकन्वीनियंस रहती है। नाउ अब आपके 3 घंटे शुरू हो गए। लेट्स स्टार्ट। हम 9 AM वाली शिफ्ट को कंसिडर करते हैं। द टाइम हैज स्टार्टेड टिकिंग। आपको एग्जामिनर ऑब्जेक्टिव पेपर इमीडिएटली हैंड आउट करना स्टार्ट कर देगा। यू विल बी हैविंग 30 मिनट्स टू सॉल्व इट। इस 30 मिनट्स का ये मतलब हरगिज नहीं होता कि आप पूरे 30 मिनट अपने ऑब्जेक्टिव को दें। ऑब्जेक्टिव जो होता है वो आपका 10 to 15 मिनट्स में बड़ी आराम से हो जाता है। अमूमन 8 to 10 मिनट्स में एक कैंडिडेट बड़ी इजीली सॉल्व कर लेते हैं। हाँ, मगर अगर आपके दोस्त अहबाब महफिल में बैठे हों और आप उनसे करके इस तरह करके पूछना चाहें, हो सकता है 30 मिनट लग जाए या हो सकता है उससे भी ज़्यादा वक्त लग जाए। बट अगर आपको आता है, यू हैव फेथ इन योर सेल्फ and you are confident on your abilities and you are a person who does not cheats, very important, तो 10 से 15 मिनट 10 मिनट बहुत आसानी से आपका ऑब्जेक्टिव हो जाता है। अब हम 10 मिनट में अगर आप ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं तो रिमेनिंग आपके पास रह जाते हैं 170 मिनट्स सब्जेक्टिव पोर्शन के लिए, सॉरी, फॉर योर सब्जेक्टिव। 9:10 हो गए और अब आपके पास सब्जेक्टिव। अब अगर 170 को 4 पे डिवाइड किया जाए, 170 डिवाइडेड बाय 4, दैट बिकम्स अप्रोक्सीमेटली 42.5 मिनट्स। यस, 42.5 मिनट अब आपके पास हैं पर वन क्वेश्चन। अब ये देखने में बड़ा इजी लगता है कि 42.5 मिनट तो एक अच्छा खासा टाइम है एक सब्जेक्टिव के एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का, सॉरी, सब्जेक्टिव के एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का। हमने 4 सवाल करने होते हैं। बट अगेन, दिस इज द हाइपोथेटिकल अप्रोच, दिस इज नॉट हाउ इट एक्चुअली गोज अगेन। आपने टोटल सॉल्व करने होते हैं 4 सवाल। लेट मी इधर लिख देता हूँ, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 1 तो आपका 9:10 पे शुरू हो गया, ठीक है। अब यहां पे एक अप्रोच यूज होती है दैट यू मस्ट सॉल्व योर बेस्ट क्वेश्चन एट फर्स्ट। हमारे क्वेश्चन 2 से स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन 1 ऑब्जेक्टिव होता है, आपके पास होते हैं क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7 एंड क्वेश्चन 8। 7 सवाल होते हैं। ये मैं जनरलाइज्ड पैटर्न की बात कर रहा हूँ। पंजाबी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ज़्यादा होते हैं, 5 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, लेकिन अमूमन मोस्ट क्वेश्चंस
मोस्ट सब्जेक्ट्स में आपने 4 करने होते हैं 7 में से, पंजाबी में हमने 5 करने होते हैं 8 में से। अब आपको इस लिस्ट में से जो सबसे अच्छा क्वेश्चन आता होगा, यू विल सॉल्व दैट फर्स्ट। यू डोंट हैव टू फॉलो द असेंडिंग ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर क्वेश्चन 5 सबसे पहले आता है तो यू विल सॉल्व इट फर्स्ट, और क्वेश्चन को हमेशा आपने वही नंबर देना। फॉर एग्जाम्पल, वहां क्वेश्चन 1 को हम क्वेश्चन 5 देंगे और उसका एक टाइटल जरूर देंगे, टॉपिक सेंटेंस बना लेंगे और उसका एक टाइटल देंगे। डोंट जस्ट राइट क्वेश्चन 5 एंड ऑल्सो डोंट डू के क्वेश्चन 5 पूरे का पूरा लिखना शुरू कर दें। नो, जस्ट एक टाइटल दें एंड मूव ऑन। अब 9:10 में हमने क्वेश्चन 5 स्टार्ट किया अपना। अब टेक्निकली 42.5 मिनट हमारे पास मौजूद हैं इसको करने के लिए, बट यू विल गिव योर मैक्सिमम टाइम टू दिस क्वेश्चन 5, क्योंकि ये आपको सबसे अच्छा आता है और एग्जामिनर आपसे ये एक्सपेक्ट भी कर रहा होगा कि आप अपना बेस्ट देंगे क्वेश्चन नंबर 5 को, क्योंकि ये आपने सबसे पहले सॉल्व किया है। ही विल बी एक्सपेक्टिंग दैट, और वो वहाँ से आपकी कैपेबिलिटीज़ को अंदाज़ा लगाएगा, कैपेबिलिटीज़ का, कि आप अपने कंफर्ट जोन में कितना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। सो गिव योर मैक्सिमम टाइम। अमूमन मैं जब होता था तो मैं इसको 50 से 55 मिनट देता था, यानी कि अगर 9:10 पे सॉल्व किया है तो मेरा जो क्वेश्चन 1 होता था वो 10 बजे या 10:05 पे ख़त्म हो जाता था। आई गेव माई मैक्सिमम टाइम, क्योंकि मैंने यहाँ से अपना एक अच्छा इंप्रेशन बनाना है, ये उसने सबसे पहले चेक करना है। अब 10:05 पे अब अगला आ गया क्वेश्चन नंबर 2। फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मुझे क्वेश्चन 2 सेकंड बेस्ट आता है और क्वेश्चन 7 जो है वो सबसे अच्छा आता है। मैं क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 7 की टाइटल दूंगा उसी तरह, एंड आई विल स्टार्ट अगेन। आई विल ट्राई टू गिव इट मोर टाइम। हो सकता है मैं इसको 45 से 50 मिनट दे दूं, बिकॉज आई वॉन्ट टू कैरी दैट मोमेंटम। मैंने अच्छा मोमेंटम बनाया क्वेश्चन 5 में, क्वेश्चन 7 में भी मैं अच्छा मोमेंटम दूंगा। मैं इसको 45 से 47 मिनट दे दूंगा या 50 मिनट दे दूंगा। 50 मिनट अगर मैं इसको देता हूं तो 10:55 पे मेरा दूसरा सवाल खत्म हो गया। अब पीछे रह गया 1 घंटे और 50 मिनट, सॉरी 1 घंटा 5 मिनट रह गए मेरे पास पीछे। अब मुझे लेट सपोज क्वेश्चन 3 आता है, लेकिन ये मुझे उतना अच्छा नहीं आता था शायद, बिकॉज ऐसा अगर बहुत रेयर होता है कि आपको चारों सवाल बेहतरीन आते हों। एक नीसनी बिल्ली बीच में से निकल आती है कड़ैं करके, जो कि आपको आपकी कैपेबिलिटीज़ को चैलेंज करती है, वो आपको थोड़ा सा हिट करती है, उसको आपने सबसे लास्ट में करना होता है। ठीक है, अगर आपको चारों आते हैं वेल एंड गुड, फिर तो आई थिंक यू विल बी एबल कि आप 50 मिनट्स या 2.5 मिनट्स एलोकेट कर दें, बट दैट इज़ रेयर, दैट इज़ वेरी रेयर। दिस इज़ द मोस्ट रियलिस्टिक अप्रोच दैट यू शुड फॉलो। अब क्वेश्चन 3 जब मैं सॉल्व करूंगा तो उसी तरह क्वेश्चन 3 का टाइम दूंगा, टाइटल दूंगा, और इसको मैं ले जाऊंगा एटलीस्ट 11:30 तक। आई हैव गिवन इट 35 मिनट्स। अगेन नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो लास्ट क्वेश्चन। अब जब आप लास्ट क्वेश्चन पर आएंगे तो आप पे बहुत प्रेशर होगा। क्यों? क्योंकि ये वो सवाल है जो आपको उतना अच्छा नहीं आता, एंड एग्जामिनर नोज दैट। आपकी हैंड राइटिंग बहुत रफ हो चुकी होगी, शीटें भी मांग रहे हैं, बस सर शीट दे दें, वो शीट देने में भी थोड़ा सा टाइम लग जाता है। दैट्स अ प्रेशराइजिंग सिचुएशन। इसको आप कैसे हैंडल करते हैं? आपने एटलीस्ट 30 to 25 मिनट्स जरूर देने हैं अपने लास्ट क्वेश्चन को। ये ना हो आखिरी 3 मिनट में आप आखिरी सवाल सॉल्व करने लगे, या आखिरी 10 मिनटों में आप आखिरी सवाल सॉल्व करें। एटलीस्ट गिव 25 to 30 मिनट्स टू योर लास्ट क्वेश्चन। और उस लास्ट क्वेश्चन में जब आप देखेंगे आपके पास टाइम थोड़ा है, तो इसकी स्ट्रेटेजी ये होती है कि आप अपना इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन शॉर्टन करते हैं। एक पेपर को सॉल्व कैसे करना है इस पे भी हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बट जब आप लास्ट क्वेश्चन करेंगे तो अपना इंट्रो और अपना कंटेंट पैराग्राफ्स जब आप बनाएंगे, टाइटल्स आपने पूरे देने हैं, हेडिंग्स आपने सारी देनी है, बट कंटेंट थोड़ा कम कर देना है।
बट स्टिल यू हैव टू मेंटेन एटलीस्ट 25 to 30 मिनट्स। अगर आप अपना लास्ट क्वेश्चन, लेट्स सपोज क्वेश्चन 4 करते हैं, तो क्वेश्चन 4 को मैं यहाँ हेडिंग दूंगा और ये 12 बजे वो एग्जामिनर आपसे खुद पेपर ले लेगा, आपको जहमत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको आता है, आप लिख रहे हैं या क्या, वो आपसे पेपर खींच लेगा। और ये ज़रूर रखिएगा कि हर क्वेश्चन के बाद यू मस्ट एंड एवरी क्वेश्चन विद अ वेरी स्मॉल एंडिंग लाइन। और जब आप आखिरी सवाल अपना सॉल्व करेंगे तो उस पर आपने बाकायदा एंडिंग, मैं क्या करता था, मैं सिंगल एंडिंग लाइन लगाता था फॉर वन क्वेश्चन, और जब आखिरी होता था तो मैं ऐसे डबल एंडिंग लाइन लगा के यूं स्टार बना देता था। और जो रिमेनिंग पेजेस हो जाते थे, एक्स्ट्रा पेजेस, वो आपने ज़रूर कट करने होते हैं। आपके पास जब शीट होगी, जब आंसर शीट आपके पास जब ऐसे मौजूद होगी और आपका सवाल अगर फर्ज करें यहाँ पे ख़त्म हो गया, आपने यूं एंडिंग लाइन लगा दी, तो जो रिमेनिंग पेजेस हैं यू हैव टू मार्क, ऐसे आपने लाइन लगा के काट देनी है। ये आपने ज़रूर करना होता है। दीज आर वेरी गुड मैनर्स। एग्जामिनर को पता लग जाता है कि अच्छा यार इसने काट दिया, आगे कुछ भी नहीं है। एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, और आप जितना अच्छा इंप्रेशन डालेंगे एग्जामिनर पे, उतने आपके पासिंग चांसेस बढ़ जाएंगे। दिस वॉज द मोस्ट रियलिस्टिक अप्रोच to spend your 3 hours smartly in the CSS examination or any other competitive examination. I hope I was able to help you. इस लेक्चर के लिए बस इतना ही। तमाम CSS जवानों को कारी नींद का सलाम।